So hello ladies and gentlemen, welcome back to yet another video. I hope you are doing great. I hope you have a good day. My name is Ashish and I'm a second-year engineering student at Thapar University, Patiala campus. So इस चैनल पे मैं वीडियोस डालता हूँ इंजीनियरिंग के बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में एंड स्टोरी टेलिंग के बारे में. So in this particular video we are going to be talking about 5 gadgets that you can buy to upgrade your skills for hacking. So let's roll the intro first. तो चलिए शुरू करते हैं. ऑलराइट गाइस, अब हैकिंग के लिए आपको कोई पर्टिकुलर हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन का डेस्कटॉप नहीं चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपको i7 प्रोसेसर चाहिए और उसके साथ 3090 ग्राफिक कार्ड चाहिए होगा जिसके अंदर साथ साथ 32 गीगाबाइट्स ऑफ रैम हो. ऐसा नहीं है. वो ऑब्वियसली काम को काफी इजियर बना देता है, काफी फास्टर बना देता है. सो इफ यू आर नॉट ऑन अ वेरी प्रो लेवल कि अगर आपको काफी ज्यादा VMs नहीं चलानी, काफी ज्यादा वर्चुअल मशीन्स नहीं चलानी, देन अ सिंपल लैपटॉप कैन डू द जॉब. सो जब मैंने हैकिंग शुरू करी थी, आई स्टार्टेड इट ऑन माई HP EliteBook G410. सो आई गॉट इट फॉर अराउंड 20k rupees and it came with an i5 4th generation processor and 8 gigabytes of RAM. उसके बाद I bought this HP Omen which came with an Ryzen 4500 and 8 gigabytes of RAM. But अभी पीछे मैंने इसकी RAM अपग्रेड करवाई थी 16 gigabytes पे. So it is able to do all the task pretty quickly. अब हमें मेरे सिस्टम के बारे में पता लग ही गया कि मैं किस सिस्टम पे हैकिंग करता हूँ. So ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप या हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन वाला डेस्कटॉप चाहिए. सो मैंने हैकिंग एक डुअल कोर प्रोसेसर पे भी की हुई है. सो आई हैड दिस कंप्यूटर एट माय होम, लाइक इट केम विद एन डुअल कोर प्रोसेसर. सो मैंने उसके अंदर लिनक्स डाली एंड इट वाज विद 2 गीगाबाइट्स ऑफ रैम. सो कंक्लूजन ये है कि लाइक यू डोंट नीड अ हाई एंड प्रोसेसर, यू डोंट नीड अ हाई एंड सिस्टम. A pretty basic one can get the job done too. Like अगर तुम्हें स्टार्ट करना है तो तुम एक बेसिक वन से स्टार्ट कर सकते हो. Coming to the first device which you can buy to level up the game is a Wi-Fi adapter. Personally मेरे पास ये TP-Link का USB Wi-Fi dongle है. I use this for Wi-Fi packet injection. So now many of you might ask कि भैया लैपटॉप के अंदर तो पहले से ही Wi-Fi built in होता है तो हमें Wi-Fi dongle लेने की जरूरत क्या है. So many of those chipsets like Wi-Fi chipsets don't support packet injection. So like तुम ऐसे ही कोई dongle नहीं ले सकते. There are certain chipsets जो supported होते हैं. Like this one I have is a 3rd generation model and इसका जो 4th generation था वो by default supported था Kali के through for packet injection. But some developers came forward और उन्होंने इसका software driver update करा and now you are able to do packet injection in this 3rd generation model also. So like it costed me around 700 rupees. So it gets most of the work done. Like कभी कभार बीच में हरकतें करता है ये, but सस्ते में जुगाड़ है. वरना you can buy the Alpha card which cost close to 5 to 6k and like इंडिया के अंदर तो सामान वैसे ही महंगे हैं टैक्सेस के कारण. So my suggestion would be like अगर तुम्हारे पास पैसे है तुम उस अल्फा कार्ड पे इन्वेस्ट कर सकते हो. वरना like what you can do is buy this one, get started on this particular one and spend the rest of your money on other gadgets. Coming to the next device which you can buy is a pen drive. So I personally have this Kingston का 32 gigabytes 3.1 USB. So I bought it for close to like sale के अंदर 300 रुपए का खरीदा था and it has Kali Linux installed in it. So like अगर मैं इसको किसी भी सिस्टम के अंदर प्लग इन करता हूँ and boot up करता हूँ so Kali चल जाएगी and it has some of my favorite softwares installed. So you can buy any pen drive you want. So my suggestion would be like minimum 16 gigabytes of space लेना and हो सके तो USB 3 लेना वरना USB 3.1 because of the speed. वरना speed काफी slow आएगी and तुम्हें दिक्कत आ सकती है. So the next device we are going to be talking about is a USB rubber ducky. So imagine करो कि तुम्हें कुछ ऐसी ही एक पेन ड्राइव मिलती है and तुम उसे उठाते हो and you plug it in your mobile OTG के थ्रू या फिर अपने सिस्टम में and like उसके बाद कुछ हरकतें होने लगती है तुम्हारे पीसी में. like तुम चला रहे हो बट इट इज गेटिंग स्लोअर. सो लाइक तुम्हारा वेबकैम ऑटोमेटिकली ऑन हो रहा है, अपने आप ही कीबोर्ड पे कुछ ना कुछ टाइप हो रहा है. सो या दैट्स व्हाट रबर डकी इज कैपेबल ऑफ. सो लाइक इट हैज अ फोटोजेनिक मेमोरी. लाइक कुछ ही मिनटों में तुम्हारा पूरा सिस्टम खत्म. लाइक जो भी तुम टाइप करोगे वो उस बंदे के पास चला जाएगा. अब इमेजिन करो कि लाइक एक कंप्यूटर है जो हमारे हाथ के जितना ही है. मेरा ये हाथ है इसके जितना ही है, एक्चुअली इससे भी छोटा. मोस्ट ऑफ यू वुड हैव गेस्ड टिल नाउ कि किस डिवाइस की मैं बात कर रहा हूँ. सो इट इज a Raspberry Pi. So it is a small computer you can say
एंड इतना छोटा सा होता है, तुम इसको कहीं भी अटैच कर सकते हो. सो यू कैन प्लेस इट इन योर कॉलेज, लाइक कॉलेज लाइब्रेरी में लगा सकते हो, रेलवे स्टेशन पे लगा सकते हो, एयरपोर्ट्स पे लगा सकते हो, किसी कैफे के अंदर लगा सकते हो. एंड यू कैन डू मैन इन द मिडल अटैक. लाइक अगर किसी को नहीं पता कि MITM क्या होता है, देन यू कैन डू अ गूगल सर्च. सो इसका जो पूरा सेटअप होता है विच कोस्ट क्लोज टू 5K, उसके अंदर आता है एक SD कार्ड, एक रास्पबेरी पाई, एक पावर बैंक एंड समटाइम्स अ केस इज इंक्लूडेड, डिपेंड्स ऑन विच वेरिएंट यू आर बाइंग. सो बेसिकली इसके 3 वेरिएंट्स आते हैं, 2 GB ऑफ रैम, 4 GB रैम मॉडल एंड 8 GB वन. सो माई सजेशन वुड बी, अगर तुम खरीद ही रहे हो तो बाय 4 GB मॉडल और एन 8 GB मॉडल. 2 GB लेने का कुछ फायदा नहीं बनता. एंड इफ यू हैव एनी IoT प्रोजेक्ट्स तो तुम उसके ऊपर भी कर सकते हो. इफ यू आर समवन जिसके पास कोई सिस्टम नहीं है हैकिंग स्टार्ट करने के लिए, सो व्हाट दे कैन डू इज बाय दिस रास्पबेरी पाई, बाय अ कीबोर्ड एंड को अपने टीवी के अंदर अटैच कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट हैकिंग. सो बेसिक काम तुम्हारे हो जाएंगे. इट डजंट टेक मच लोड, बट जो तुम बेसिक जो हैकिंग होती है वो तुम कर सकते हो. सो द नेक्स्ट डिवाइस विच आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट कैन हैक योर ड्रोन्स, can hack your car's central locking device system and hack your radios. The device name is Crazy Radio 2. काफी uncommon hacking है ये. Like बाहर अब्रोड आउट ऑफ इंडिया के अंदर ये काफी पॉपुलर है, बट इन इंडिया इट इज नॉट वेरी मच पॉपुलर. लाइक जो इसके गैजेट्स आते हैं वो इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं होते हैं. यू हैव टू इम्पोर्ट देम from outside. So essentially this USB dongle is capable of observing, recording and injecting wireless radio waves. So अलग अलग सॉफ्टवेयर के साथ compatible होता है, जैसे माउस चेक हो गया, की जैक हो गया, की स्निफर हो गया एंड जैकेट प्रोजेक्ट्स के साथ. So these are 5 gadgets which you should have. Out of all these 5 devices I have 3. तुम कमेंट्स के अंदर गेस करो कि which 3 I do have and I am collecting money for the rest too. So most of these gadgets are not available. Like कुछ तो अवेलेबल होंगे, like पेन ड्राइव अवेलेबल हो सकती है, USB डोंगल अवेलेबल हो सकता है एंड ड्रबर डकी भी कहीं कहीं अवेलेबल होती है. रास्पबेरी पाई इजिली मिल जाता है. सो टॉकिंग अबाउट अदर गैजेट्स लाइक वाईफाई पिनएपल हो गया, क्रेजी रेडियो 2 हो गया. दैट्स ऑल फॉर दिस वन पर्टिकुलर वीडियो. अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो. द गोल ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल इज टू रीच 500 सब्सक्राइबर्स बिफोर द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर मंथ. वी आर गेटिंग क्लोज एंड अगर तुम्हें और कुछ डाउट्स हो तो तुम कमेंट्स में लिख दो. एंड इफ यू वांट वीडियो ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक, सो also comment down below. And you can also follow me on Instagram. The handle will be somewhere around here. And yeah, that's a wrap. Peace out.